Dear students, in my last video, I had told you about freedom movement in India, and we had reached till partition of Bengal. So all of you know that Lord Curzon did partition of Bengal in order to separate the Bengali Hindus from Bengali Muslims, because freedom movement was becoming popular and people were becoming aware about their rights. So it was a move to crush the movement and divide the attention of the people, and at the same time divide Hindus and Muslims, and they were successful in doing that. So after the partition of Bengal, there was unrest everywhere. People protested partition of Bengal. लोगों ने इसका बहुत अपोज किया, और moderates and मतलब there was a high feeling, and people were shocked. And at its Banaras session, Congress was held within the months of partition of Bengal. The Congress adopted 3 resolutions that were calculated to take it away from the course of constitutional agitation. And the 3 resolution were Swadeshi, boycott and national education. तो कांग्रेस ने बनारस सेशन में 3 रेजोल्यूशन लिया: स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. At the same time, Britishers were trying to crush the nationalists, and the moderates virtually threw the extremists out of the Congress in 1907. And Britishers also were taking action against these extremists. Tilak was jailed for 6 years from 1908 to 1914. Aurobindo was also put to trial for his role in organizing revolutionary violence. Lala Lajpat Rai, he had been exiled. So those who were leading the movement, they were crushed. Along with this, Britishers also did one thing, and they introduced Morley Minto reforms in 1909. So what is this reform? According to this reform, the Muslims would have separate electorates. तो इससे क्या है? There was a rift between the Hindus and the Muslims. और इसी से रिलेटेड फिर आगे चल के 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, and Muslim people were given separate representation. फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वार हुआ 1914 to 1918, उससे पहले देर वॉज अ लिटिल बिट द रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ वे स्लो. And at the time of World War, Indian people supported the Britishers because they thought that they were fighting for democracy, and after World War they will get their own democracy. But Lokmanya Tilak, from the very beginning, he was of the opinion that Britishers would never give them their independence, and with the help of Annie Besant, he started Home Rule League. तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, और वो हमेशा से स्वराज के ही पक्ष में थे. और इस बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और दे ऑल रियलाइज दैट दे हैड कॉमन गोल. फिर ड्यूरिंग द वार गवर्नमेंट decided to have emergency powers, but after the war they continued some of the powers, and in the form of Rowlatt Act, known as Black Act. Now what was Rowlatt Act? According to the Rowlatt Act, on the basis of suspicion anyone could be jailed without trial. अगर आपको किसी पर संदिग्ध है, आपको शक है, तो उसको जेल भेज दिया गया विदाउट एनी कॉज और विदाउट एनी ट्रायल. तो इसका अपोजिशन ऑल ओवर इंडिया हुआ, और उसके बाद क्या है, सत्याग्रह हुआ टू अपोज रॉलेट एक्ट. और उसके बाद इन 1919 बहुत सारे कुछ एक्ट्स हुए, और उसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को मार दिया. और उसके बाद गांधी जी खुद ने बिलीव किया कि
ये जो है या कांग्रेस ने खुद बिलीव किया कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं और इंडियन पीपल लोगों के ऊपर वो कुछ भी जुर्म कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से समझौता करने के लायक नहीं है। इसी बीच क्या है कि जो टर्किश एम्पायर था जिसको लोग खलीफा बोलते थे, उनको डिसमेंबर कर दिया गया। तो मुस्लिम लोग बहुत नाराज़ हुए और फिर खिलाफत मूवमेंट के हुआ। और उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। आप सभी जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से सहयोग ना देना था। लोग क्या है खादी अपनाने लगे, किसी प्रकार का फॉरेन गुड्स है, फॉरेन लिकर है, फॉरेन दवाइयाँ हैं या किसी प्रकार का फॉरेन जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं उसको लोग अवॉइड करने लगे और स्वदेशी को अपनाने लगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल, बट एक इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में जिसमें गोरखपुर में जिसमें 22 पुलिसमैन को एक भीड़ ने जिंदा जला दिया, जिसके तहत गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को एंड कर दिया। उसके बाद क्या है कि कुछ कांग्रेस ने 6 जगह में अपना रिप्रेजेंटेटिव्स जीता और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन विथ नो इंडियन मेंबर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इन इंडिया। तो पीपल वे अगेन अनहैप्पी विद दिस एंड दे अपोज साइमन कमीशन। और अब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे गांधी जी हो, उनको भी ऐसा लगा कि पूर्ण स्वराज से कम यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा और उससे कम में वो ये समझौता भी नहीं कर पाएंगे। देन कांग्रेस का फिर से एक सेशन हेल्ड हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर एंड इन 1929 और उसमें डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी विल बी ऑब्जर्व ऑल ओवर द कंट्री एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। सो देख लीजिए इतने साल पहले ये दिन तय किया गया था एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। अब द स्टेज वॉज सेट फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट बिगैन विद गांधी जी डांडी सॉल्ट मार्च। आपको मालूम ही है कि डांडी जी ने सॉल्ट मार्च की थी क्योंकि नमक पे टैक्स लगने लगा था और ब्रिटिश मोनोपोली को बीट करने के लिए उन्होंने सॉल्ट मार्च की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन लोग उनके द्वारा बनाया गया ही सॉल्ट खरीदें और उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था ज़्यादा, तो उसको अपोज हुआ। उसके बाद लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद क्या है कि 1937 में 6 प्रोविंस में कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और उनके मिनिस्टर्स भी फॉर्म हुए, लेकिन 1939 से 1945 में वर्ल्ड वार हुआ और ब्रिटिशर्स मेड इंडिया पार्टी टू द वार विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन। तो ब्रिटिशर्स क्या है इंडिया से पूछे बिना इंडिया को अपने साथ ले लिए, अपनी पार्टी बता दिया। सुभाष चंद्र बोस बहुत वो चाहते थे कि इंडियन पीपल जो है वो इस समय का फ़ायदा उठाएं और इंडिया को इंडिपेंडेंस अभी मिल जानी चाहिए, लेकिन नेहरू जी और गांधी जी का जो मत था वो उनसे डिफरेंट था। इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज या नेशनल इंडियन आर्मी की स्थापना की और अपने तरीके से लड़ाई जारी रखी। और फिर कांग्रेस जो लीडरशिप है, अब 1942 में उनको लग गया कि ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है। शुरू से वो हर बार विश्वास करते गए और धोखा खाते गए, तो अब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना की। अब उनको भी लगने लगा, नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों को, कि किसी भी तरीके से इतने साल से जो ये लोग विश्वास दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को इतने संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, परंतु इसके साथ ही साथ पार्टीशन हो गया। जो ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता में 1928 में एक रिफ्ट हुई थी इंडिया हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, वो जो खाई थी वो पार्टी ना जा सकी। और जो लाहौर सेशन था 1940 में, उसमें जिन्ना की लीडरशिप में पहले से ही हिस्टोरिक पाकिस्तान रिजोल्यूशन ले लिया गया था और बाद में जब इंडिपेंडेंस मिली तो 1947 में ही देश का बंटवारा हो गया
और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। तो ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल में सक्सेसफुल हुए और इस तरीके से इंडिया को आज़ादी प्राप्त